الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش۔ آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ 3 دن وقفے کے بعد آئے ہیں، ہفتے میں 4 دن، روزانہ رات 9 بجے ہم لائیو ہوتے ہیں، اور اب 3 دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج ذہنی آزمائش سیزن 17 کا 5واں سلسلہ ہے۔ آج 5ویں ٹیم کی تلاش ہے، اور آج 2 ٹیمیں ہیں، بہت دور دور سے آئی ہیں۔ ایک بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے اور ایک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے۔ بلوچستان کے شہر اوستا محمد کی ٹیم آج ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ دوسری طرف اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہوں گے۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ رہیے، اچھی نیتوں کے ساتھ رہیے۔ علم دین سیکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ نعت خوانی بھی ہوگی، نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا، قرآن و سنت کی باتیں بھی جانیں گے، گھر بیٹھے علم دین بھی سیکھیں گے۔ ان اچھی نیتوں کے ساتھ اب ہمارے ساتھ شامل رہیے، کالز بھی کرتے رہیے، وقتاً فوقتاً آپ کی کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں۔ آج بھی ہمیں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی مرحبا کہتے ہیں، اور عاشقان رسول کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ آپ بھی ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، ہم اپنے اسٹوڈیو میں بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیے۔ ہر اتوار، پیر، منگل، بدھ، ہفتے میں 4 دن رات 9 بجے ہم لائیو ہوتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں آنا ہے تو آپ 8:30 بجے تک، بلکہ کوشش کریں عشاء کی نماز ہی یہاں ادا فرمائیں۔ آج کل 7:45 بجے عشاء کی نماز با جماعت فیضان مدینہ میں ادا کیجیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسٹوڈیو تشریف لائیں۔ وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو اسٹیج پر بلانے کے لیے۔ آئیے بلوچستان، اوستا محمد اور اسلام آباد کے اسلامی بھائی تشریف لائیے۔ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھ رہی ہیں۔ آئیے ناظرین بتاتے ہیں 4تھ ایپیسوڈ بڑا دلچسپ تھا۔ تین ٹیموں کے درمیان وہ مقابلہ ہوا۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ پہلے 3 مقابلے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر جو 3 ٹیمیں پیچھے رہتی ہیں ان کا پھر ایک مقابلہ کرتے ہیں، ایک اور چانس دیتے ہیں، اور پھر ایک ٹیم ان میں سے آگے جاتی ہے، 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہو جاتی ہیں۔ لاسٹ جو ہمارا مقابلہ ہوا تھا ویڈنسڈے والے دن، بدھ والے دن، آئیے دیکھتے ہیں اس مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا۔ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ، 1 ونر رہے، 2 جدا ہو گئے۔ آئیے جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور آج ذہنی آزمائش کی 4تھی ایپیسوڈ ہے۔ شریعت سے کیا مراد ہے؟ شریعت سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال و افعال جو مجتہدین پر ظاہر ہوئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا، نکہت سے کلی کوچوں کو گلزار بنایا، نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھجور سے افطار کرنا سنت نہیں ہے، غلط۔ قصیدہ نور عربی زبان میں لکھا گیا ہے۔ جلدی کریں۔ بابا فرید کو گنجے بخش کہا جاتا ہے، غلط۔ سیاست حدیث کی 7 مشہور کتابوں کو کہا جاتا ہے، غلط۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ صحیح۔ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ آج کا مقابلہ وار بٹن والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ ماشاءاللہ وار برٹن کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے، اور 2 ٹیمیں ہم سے اشک بار آنکھوں کے ساتھ جدا ہوئیں۔ بہرحال آج بلوچستان کے اسلامی بھائی ساتھ ہیں، تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اوستا محمد کے اسلامی بھائی بتائیے کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے، مصروفیات کیا ہیں؟ میرا خیال مائک آن آپ کا نہیں ہے، آن کیجئے مائک، بٹن دبائیے آگے والا۔ چلیے دوسرے بھائی اپنا نام بتائیں۔ آپ مائک آن ہے آپ کا؟ جی بتائیے۔ چلیں آپ کے مائک کو سیٹ کرتے ہیں جب تک ہم اسلام آباد والوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی چلیں، مائک کا میرا خیال ہے کہ جی اب آپ بات کیجئے۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. میرا نام حسین علی اتاری اور والد محترم کا نام شفیع محمد ہے. میں جامعۃ المدینہ اوسطی محمد میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور بیسیکلی میرا تعلق گڑھی خیروں سے ہے. माशाल्लाह. जी अगले इस्लामी भाई. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. میرا نام عبد القدیر ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد صالح ہے. میں سنی مدرسہ جامع فیض العلم مدرس ہوں اور میرا تعلق بلوچستان کے ضلع اسطیٰ محمد سے ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آپ کو مرحبا کہتے ہیں. تمام عاشقان رسول کے جامعات ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے بتایا کہ ایک دعوت اسلامی کے علاوہ کسی سنی جامعہ کے آپ استاذ ہیں, تو کیسے آپ کا ذہن بنا ذہنی آزمائش میں آنے کا؟ کبھی دیکھا تھا یہ سلسلہ پہلے؟ زمانہ طالب علم سے میرا شوق تھا اور یہ خواہش تھی کہ انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش میں آئیں گے. ماشاءاللہ. تو آج پھر آپ آڈیشن میں گئے اور وہاں جا کے پھر سلیکٹ ہوئے؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد علی ہے. والد محترم کا نام سعید احمد ہے. میں جامعۃ المدینہ اوسطی محمد میں درجہ ثانیہ یعنی سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. میرا بیسیکلی تعلق اوسطی محمد شہر سے ہے. کیا بات ہے. اوسطی محمد کے اسلامی بھائی ہم تک پہنچے. کیسے پہنچے؟ آئیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. آ گیا ذہنی آزمائش دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا. ذہنی آزمائش سیزن 17 کی آڈیشن ٹیم پہنچ چکی ہے. رقبے کے لحاظ سے ملک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے شہر اوسطی محمد میں. اب تو سیزن 17 آیا ذہنی آزمائش آیا ذہنی آزمائش آیا رب کی رحمت ساتھ لایا علم خزانہ. ہدیہ کا لین دین کرنے سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ روایت معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ کا لین دین کرو کیونکہ اس سے عداوتیں مٹ جاتی ہیں. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے. ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. آ گیا ذہنی آزمائش دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب اوسطی محمد کے اسلامی بھائی ہم تک پہنچے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ٹیم آج ہمارے پاس موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 16 سے, بلکہ شاید 15 کا فائنل بھی اسلام آباد میں ہوا تھا, 16 کا فائنل بھی اسلام آباد میں ہوا, سیزن 17 کا بھی اب تک تو ارادہ یہی ہے کہ فائنل اسلام آباد میں ہوگا, مگر کیا اس فائنل مقابلے میں اسلام آباد کی ٹیم شامل ہوگی کہ نہیں, یہ تو ان کا اگلا سفر بتائے گا. آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال حسن شاہ ہے اور میرے والد محترم کا نام رضوان علی شاہ ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان رضا نیو سٹی واکنڈ میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق بھی واکنڈ سے ہے. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جواد حسن ماجیال اتاری ہے اور میرے والد محترم کا نام حاجی مقبول احمد ماجیال ہے. میں بیسیکلی سرگودا سے ہوں اور فی الحال میں فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی G11 اسلام آباد میں درجہ ثالثہ 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے BS اسلامک اسٹڈیز کے فرسٹ سیمسٹر کا بھی طالب علم. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں آپ کو. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حذیفہ قادری بن زائد حسین اتاری. میں جامعۃ المدینہ فیضان اتار روات 3rd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق روات راولپنڈی سے ہے. جناب روات والے بھی آئے ہیں, سرگودا والے بھی آئے ہیں اور ماشاءاللہ واکنڈ والے بھی آئے ہیں. اسلام آباد کی ٹیم آس پاس کے علاقوں کو لے کر آئی ہے. اب کیسی تیاری کر کے آئے تو یہ وقت بتائے گا. سلیکشن کیسے ہوئی, آڈیشن کیسا ہوا, آئیے کچھ دکھاتے ہیں. کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر, کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر, کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر, آتی ہے یا آج آڈیشن ہے کیپٹل سٹی آف پاکستان اسلام آباد کا. آ گیا ذہنی آزمائش دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا.
جواد بھائی یہ بتائیں کہ حمامۃ المسجد کس صحابی کا لقب تھا؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی اکثر راتیں قیام میں کٹتی تھیں اور دن روزے میں کٹتے تھے، اسی وجہ سے انہیں حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جانے لگا۔ جواب درست ہے۔ ماتے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، بند کر رہے ہیں گرفتاروں کے، تیرے ابرو کے تصدق پیارے بند کر رہے ہیں گرفتاروں کے۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، اسلام آباد کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی یہ بھی آپ نے دیکھا۔ رکن شورا وقار المدینہ بھائی کی دعائیں لے کر ان کے ہاتھ سے علامتی ٹکٹ لے کر کراچی آئے ہیں۔ اب دیکھیں سفر کب تک جاری رہتا ہے، کہاں تک جاتے ہیں۔ ویسے تو ان کو جیت کر بھی اسلام آباد جانا ہے اور پیچھے رہ گئے پھر بھی اسلام آباد جانا ہے، تو اصل دیکھنا یہ ہے کہ فائنل کے لیے اسلام آباد جائیں گے یا ویسے ہی واپس جائیں گے۔ اللہ پاک سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ایک قرآن دازی رہ گئی تھی، پہلے وہ پچھلی قرآن دازی کر لیتے ہیں، پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جی 22 اکتوبر کو جو قرآن دازی رہ گئی تھی، سوال تھا 22 اکتوبر کو جو سلسلے میں قرآن دازی رہ گئی تھی، سوال تھا ہر اسلامی مہینے کی 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ تو درست جواب ہے ایام بیز۔ محمد وقاص ستاری، بھینس کالونی کراچی، بنت ظفر عباس سنیوٹ، بنت اسد قائد آباد ضلع خوشاب، عابد حسین موڑ ساہیوال، بنت محمد اشرف جام شورو، بنت محمد حنیف خیرپور میرت سندھ، بہزاد رضا کراچی قائد آباد، بنت نظر محمد تاندلیا والا، سیف اللہ چکوال، ہمشیرہ قاری محمد زبیر اٹک پنڈی گھیپ، حسیب محمد اتاری شہداد پور، محمد وسیم اوکاڑا۔ آج جس خوش نصیب کا نام نکلا ہے بہزاد رضا کراچی قائد آباد، تو یہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آ سکتے ہیں، انشاءاللہ یہیں ان کو تحفہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، قرآن دازی بھی ہو گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں آج کا سلسلہ جو ہے وہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جناب، علم نور ہے، عشق کے بول، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل۔ ناظرین، آج ایک نیا سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے، ایک سیگمنٹ چینج ہوا ہے، تلاش کیجئے۔ امید ہے یہ بھی آپ کی دلچسپی کا سامان ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ پھر قرآنی معلومات، آخری سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے ہم کرتے ہیں جو آپ نے جواب دینا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، اور ایک سوال کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے کوئز اپلیکیشن کے ذریعے دینا ہے۔ پہلا سوال کریں گے کوئز اپلیکیشن کے ذریعے۔ اب تک ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سوال یہ ہے، وہ کون سی خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کانوں کو چھدوایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ ویری انٹرسٹنگ کوئسچن، اسلامی بہنوں کو زیادہ دلچسپی ہوگی۔ جواب دیجئے کوئز اپلیکیشن پر جا کر، صحیح جواب دے کر اپنی آئی ڈی سیو رکھیے گا، پروگرام کے آخر میں بتائیں گے، 5 خوش نصیبوں تک تحائف بھجوائے جائیں گے۔ ایک سوال آپ سے کریں گے جس کا آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دینا ہے، اور وہ سوال ہے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بتائیں۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام آپ نے بتانا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اگین ویری انٹرسٹنگ کوئسچن، ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیجئے۔ پروگرام کے آخر میں قرآن دازی ہوگی، ایک قرآن دازی وہی باقی ہے مجھے پتا ہے، اس کا جواب بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو وہ قرآن دازی ہم کریں گے۔ وقت ہوا ہے، شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال کرنا ہے ہم نے ہماری ٹیم سے، اوستا محمد سے، اور سوال یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی بتائیے اور اس آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کمال کی آیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سیدنا بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ بے شک آپ کا خلق عظیم ہے. اس کے تحت اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ کیونکہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے ایسے برا سلوک برداشت کرتے ہیں جو دوسرے شخص اپنے قوم کی طرف سے ایسے برا سلوک برداشت کرتے ہیں جو دوسرے شخص نہیں کر سکتے. تفسیر بیضاوی میں ہے کیونکہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تم اپنی قوم کی طرف سے ایسا برا سلوک برداشت کرتے ہو جو دوسرے انسان برداشت نہیں کر سکتے. ترجمہ کنز الایمان اس آیت کا کیا ہے؟ اور بے شک تمہاری خوبو یعنی خلق بڑی شان کی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کا برا سلوک بھی برداشت فرماتے. اللہ کرے کہ ہم میں بھی یہ نرمی اور یہ ٹالرنس آ جائے. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب، اب بات یہ ہے کہ یہاں اخلاق کریمہ کی بات ہو رہی ہے اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ پیارے آقا کے اخلاق کریمہ کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں. یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا استاد محمد والوں سے بھی اور اسلام آباد والوں سے بھی کہ جب بھی بات کریں گے تو 25 سیکنڈ کے اندر کریں گے. مشورہ کریں لیکن ایسا نہ ہو کہ اب آخری سیکنڈ پہ بولنا شروع کریں اور ٹائم گزر جائے اور آپ کا نمبر کٹ جائے. ایک کال کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن 3 چیزوں میں رفعت عطا کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طرح سے رفعت عطا فرمائی. نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی معراج والی رفعت عطا فرمائی. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں پر سرداری کا شرف عطا فرمایا. اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزات عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. کیا بات ہے! نبی پاک کو کیا کچھ رب نے عطا فرمایا. مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحا. کتاب و سنت سے کیا مراد ہے؟ بلوچستان والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور سنت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قول اور فعل اور تقریر. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے کسی امتی نے کوئی کام کیا ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر سکوت اختیار فرمایا. اور صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی سنت کہا جاتا ہے. جی، نبی پاک کے صحابہ کی سیرت طیبہ کو بھی سنت کے ضمن میں شامل کیا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. جی، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، صرف 80 لوگ ایمان لائے. ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت میں اتنا کچھ درس ہے کہ جب بھی دین کا کام کریں تو ہمت کے ساتھ کریں، استقامت کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ اکبر. جواب درست دے دیا ہے. اپنی ہی اولاد کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت آدم علیہ السلام. سبحان اللہ، اپنی اولاد کی طرف بھیجے گئے. جواب درست دے دیا ہے. کچھ تذکرہ جنت کا کر لیتے ہیں. اسلام آباد والوں سے سوال ہے، کیا جنت میں فالتو بات بھی ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ.
बुलंद बाग में कि उसमें कोई भी बेहुदा बात ना सुनेंगे। इमाम हाज़िन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं यानी जन्नत में कोई भी लग बात ना होगी ना ही बातिल, ना कोई लग़व बात होगी ना बातिल, यानी कोई बेहुदा बात, कोई फजूल बात जन्नत में नहीं होगी। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब जन्नतियों का तरीका यह है कि ना वहां बेहुदा बातें करेंगे ना फालतू बातें करेंगे, क्यों ना आज दुनिया ही में हम जन्नतियों का तरीका अपना लें और फजूल बातों से अपने आप को बचाएं, अल्लाह रसूल का जिक्र करें, अच्छी बातें करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दोनों टीमों से 3-3 सवाल हो गए हैं, कोई गलती नहीं की है, मगर अब थोड़ा सा मुश्किल मरहला होगा। अब जो सवाल होंगे वो सिलेबस से हटकर होंगे और फिर देखते हैं कि जवाब दे पाते हैं कि नहीं। पहले ऑप्शन दिए जाएंगे, बलूचिस्तान वाले बताएं, ऑप्शन दिखाए जाएं। कुरान पाक, अंबिया किराम, प्यारे आका, सहाबा किराम, औलिया किराम, जनरल नॉलेज, इन 6 में से कोई एक ऑप्शन पहले कबूल कीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। कुरान पाक। कुरान पाक से सवाल होगा। पहला सवाल क्या है बताइए? सूरह माइदा में कितने रुकू हैं? आप चाहें तो जवाब दीजिए, चाहें तो यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से भी मदद ले सकते हैं। 25 सेकंड में जवाब दे दें। कारी साहब अगर हाफिज साहब होंगे तो शायद सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन है या इसमें मदद लेनी है? इसमें आप मदद दे सकते हैं किसी से। कौन मदद करेगा इनकी? जल्दी हाथ उठाएं। आप देखें इनमें से किसकी मदद आप ले रहे हैं। अब एक ही बंदा मददगार है आपका। चलें जनाब, चाहें तो उनकी मदद दे लें। 2-3 हाथ खड़े हो गए, किसकी मदद लेंगे? इस्लामी भाई चलें खड़े हो जाएं भाई, माइक दें इनको। अब देखें ये मदद कर कर कश्ती किनारे लगाते हैं या एक साथ मिलकर डूब जाते हैं। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम करीम बख्श है। मेरा ताल्लुक उस्ताद मोहम्मद से है। उस्ताद मोहम्मद वाले एक मददगार साथ लाए हैं। चले जनाब आप बताइए। जी सूरह माइदा के 16 रुकू हैं। 16 रुकू। आप हाफिज कुरान है? नहीं, हाफिज कुरान नहीं है, फिर कैसे बता रहे हैं? याद रखा था कितने रुकू हैं? जी चले भाई, अब इनके साथ जाना है या आपने कोई और जवाब देना है? 16 रुकू वाला ही जवाब देना है। 16 रुकू जनाब बताइए भाई, 16 रुकू है कि नहीं है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छी सी दूध पती चाय इन्हें आप पिला दीजिएगा, खाना भी खिलाना चाहे तो खिला दीजिएगा कि सही जवाब दे दिया। नहीं, इनको इंशाल्लाह हम भी तोहफा देंगे। आप भी तोहफा देंगे। चले भाई आप भी तोहफा दे दें। बड़ी प्यारी किताब दिलचस्प मालूमात। चले भाई हाँ, ज़हनी आज़माइश के सवालात पर मुश्तमिल है ये इंशाल्लाह तोहफे। हाँ ये किताब नाज़रीन कुछ लोग कहते भी हैं कि हमें ज़हनी आज़माइश का सिलेबस दे दें, हम भी ज़हनी आज़माइश करना चाहते हैं। दावत आम है यारों के लिए, आप दुनिया में जहाँ कहीं हैं ज़हनी आज़माइश कीजिए। हमने आपके लिए किताबें तैयार की हुई हैं। दो वॉल्यूम आ गए इसके। जी 2 माशाल्लाह। ये पहला वॉल्यूम है और ये 400 रुपए में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। आप इसको अपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन सेंटर में, मदरसों में जहां चाहें कीजिए। इल्म दीन फैलेगा इंशाअल्लाह, हमें भी कुछ ना कुछ सवाब मिलेगा। इस्लामाबाद वालों को दिखाइए जनाब ऑप्शन। जनाब कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे? कुरान पाक। कुरान पाक जनाब पहला ऑप्शन नॉर्मली कुरान पाक ही लिया जाता है। चले देखें क्या सवाल है। सवाल बताइए और आप भी चाहें तो मदद दे सकते हैं। आए हाय, सूरह माइदा में कितनी आयत है? मदद देना चाहें मदद दे सकते हैं, खुद जवाब देना चाहें खुद दे सकते हैं। मददगार रेडी हो जाएं हाथ उठाकर। अच्छा बलूचिस्तान वाले इस्लामाबाद वालों की भी मदद करेंगे, क्या बात है। सारे भाई भाई है ना। चले भाई मदद लेंगे। मदद किससे लेंगे? इसमें तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। हमजा भाई। हमजा भाई कौन है भाई? हमजा भाई। हमजा भाई खड़े हो जाएं। अब हमजा भाई देखें क्या जवाब देते हैं। ये भी इस्लामाबाद से लाए हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी हमजा भाई आप साथ भी जा रहे हैं, आपने इस्लामाबाद सोच के जवाब दीजिएगा। चलें 120 आया था। 120 जी जनाब इनके जवाब पे जाएंगे आप। पूछ लो हमजा भाई से पक्का है कि नहीं? जी यही जवाब लेंगे। यही जवाब है 120 आयत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है कुरान मजीद की। हमारे पास भी मालूमात होनी चाहिए। ये बिजनेसमैन भी गौर करें, क्या हमें ये पता है कि नहीं पता? हमें ये पता है मार्केट में रेट क्या है, डॉलर क्या चल रहा है, गोल्ड क्या चल रहा है जनाब, कंटेनर में क्या आइटम आ रही है। कुरान की मालूमात भी होनी चाहिए ना। चले जनाब फिर बारी उस्ताद मोहम्मद वालों की है। आप सवाल कौन सा टॉपिक लेंगे? अब कुरान पाक दोनों ने ले चुके हैं, अब कोई और टॉपिक की तरफ जाना होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब नबी पाक की सीरत से मुतालिक सवाल होगा। अब ऑप्शन आपको दिए जाएंगे।
जनाब, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद किसने रखा? नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद ने, आपकी वालदा ने, या आपके दादा ने? मशवरा कीजिए और जवाब दीजिए। हम शाह जी से मदद लेंगे। जी, शाह जी से मदद लेंगे। इन तीनों में से कोई ऑप्शन है ना? जल्दी करें। हुज़ूर के दादा ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा ने। बताइए क्या ये इन्होंने सही जवाब दिया है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दादा ने रखा। अब बारी इस्लामाबाद वालों की है। बताइए जनाब। कुरान पाक। कुरान पाक का ऑप्शन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे आका अलैहिस्सलाम। याद रहे नाजरीन, ये सवालात सिलेबस से हटके। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ पहला सफर किस उम्र में किया? तीन ऑप्शन। ऑप्शन देने। ऑप्शन दिखाइए जनाब। 12 साल, 10 साल या 15 साल? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ पहला सफर 12 साल की उम्र में किया। 12 साल की उम्र में किया। बताइए क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ सफर 12 साल की उम्र में किया था। नाजरीन, इससे पहले कि हम यहाँ हाजरीन की तरफ सवाल की तरफ जाएं, अब फिर वक्त हुआ है कुरानदाजी का। एक कुरानदाजी मजीद जो हमारे प्रोग्राम के शुरू में करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करके गए थे, अब उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी, सवाल ये था कि जिसकी नमाज जनाजा 3 सफ़ों ने पढ़ी उसकी क्या फजीलत है? तो दुरुस्त जवाब है उसकी मगफिरत हो जाएगी। नूर अहमद ये सिंध से हैं। अब्दुल मोमिन अत्तारी कादिरपुर, बिनते असरार अहमद बूरेवाला, अब्दुल रहमान ज़िला रहीम यार खान, बिनते मोहम्मद सिद्दीक अत्तारिया कराची, बिनते नूर जमान लक्की मरवत, बिनते इकबाल अत्तारिया चिश्तियाँ शरीफ, अबुल वली मोहम्मद अली अत्तारी शिकारपुर, मोहम्मद रहीम बिन गुलाम फरीद औस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान, बिनते मोहम्मद अशरफ जामशरो, बिनते इकबाल अत्तारिया चिश्तियाँ, सफदर अत्तारी सादिकाबाद। आज जिस खुश नसीब का नाम इस कुरानदाजी में निकला है, अबुल वली मोहम्मद अली अत्तारी शिकारपुर, तो ये अपना एड्रेस भेज दें इसी नंबर पर, इंशाल्लाह तोहफा इन तक पहुंचाया जाएगा। चलिए नाजरीन की कॉल भी सिलसिले में शामिल करते हैं और उतनी देर में आपसे भी सवाल की तैयारी हो जाएगी। कॉल दीजिएगा। हामिद रजा खान कादरी वाकई से अर्ज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल साल भर हमें जिस प्रोग्राम का बड़े ही शिद्दत से इंतजार होता है और इल्म दीन हासिल करने का बड़ा ही अहम और बेहतरीन जरिया ज़हनी आज़माइश, एक मरतबा फिर इल्म दीन का खजाना लिए आ चुका है। अल्लाह पाक हाजी अब्दुल हबीब उतारी साहब की ये नेकी कबूल फरमाए और ज़हनी आज़माइश की तमाम टीम को अल्लाह पाक इसकी बेहतरीन ज़ख़ीरा अता फरमाए। मैं आज ज़हनी आज़माइश की टीम इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ और बिलखुसूस सैयद बिलाल हसन शाह साहब को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और क्लास फेलो हैं। हाजी साहब से दुआओं की लिजा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको खुश रखे और बरकत नसीब फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह करीम, ज़हनी आज़माइश सीजन 70 माशाअल्लाह जारी और सारी है। इल्म की किरणें बिखेरी जा रही हैं माशाअल्लाह। मैं इस्लामाबाद की टीम को सपोर्ट करता हूँ माशाअल्लाह। हमारे जामिअतुल मदीना फैज़ान तार रवाज से हुज़ैफा भाई हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए। चलें, अल्लाह करे कि आपकी सपोर्ट इनके काम आ जाए। वैसे तो सही जवाब देना वो भी अल्लाह की रहमत से ही होगा इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन चलते हैं यहाँ मौजूद सवालात के लिए। जी, सवाल का दुरुस्त जवाब देने वाले को इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो मुजर्रब अमल है वो अमल करने का जो जरिया है वो इंशाल्लाह तोहफे में काउंटर तस्बीह वो इंशाल्लाह देंगे दुरूद पाक की कसरत करने के लिए। सवाल ये है कि नमाज ईशा की फ़र्ज रकातें कितनी हैं? नमाज ईशा की फ़र्ज रकातें कितनी हैं? तो बड़ा आसान सवाल कर लिया। ये मुसाफिर ये तो अभी जवाब आएगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा, फर्ज रखा। चले, बच्चे भी काफी हाथ खड़ा कर रहे हैं। चले, जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और ईशा की फर्द रकातें 4 हैं। 17 नहीं होती? नहीं, फर्ज 4 हैं। चले, इनका जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह इनको सौगाते मदीना वो तोहफे में दे रहे हैं और तस्बीह भी दे दें जिसका ऐलान किया था। चले, अच्छा, अब ईशा की टोटल रकातें कितनी हैं वो कौन बताएगा?
चले कोई और बच्चे से ले ले, आज मदनी मुन्नों वाले सवाल आपने किए तो चले वो खुश हो जाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अमजद रजा है, मैं कराची से आया हूँ। अच्छा, आपकी ट्रेन कितने बजे है? आप तो इतनी स्पीड में बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ट्रेन में बैठा है आपने। आराम आराम से बात करें। हमजा भाई कराची कहाँ रहते हैं? ओहो, ये सवाल तो मुश्किल हो गया। कराची है, बस कराची में रहता हूँ। चले आप सवाल दे दे, जवाब दे दे। ईशा की कितनी रकत? 17 रकत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब है इंशाल्लाह। इनको 20 औकाते मदीना। क्या बात है, माशाल्लाह। चले अब अगला सवाल करें। अब जरा एक और सवाल है कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं? चले ये जवाब अगर हमारी बिजनेस कम्युनिटी देना चाहे तो ज्यादा अच्छा है। पीछे जो इस्लामी भाई बैठे या फिर जो भी जवाब देना चाहे। जन्नत के दरवाजे, सुभान अल्लाह, अल्लाह जन्नत के दरवाजों से दाखिला नसीब फरमाए। जी, नाम बताएंगे, शोभा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अल्ताफ पारेख। कहाँ से तशरीफ लाए? माशाल्लाह। कराची से, गार्डन से। अच्छा, क्या मसरूफियात हैं आपकी? सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, चले आपका आना मरहबा कहते हैं आपको। आते रहा करें दावत इस्लामी के मरकज में। अब बताइए पारेख साहब का जवाब दुरुस्त है कि नहीं? जन्नत 8 दरवाजे बता। इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। इंशाल्लाह इनको मिसवाक शरीफ और तस्बीह और इंशाल्लाह इतर भी तोहफे में देंगे। क्या बात है। मैं चाहूंगा कि इनको कोई अच्छी सी किताब भी तोहफे में दें ताकि ये खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को इस ऐसी तोहफे जो है वो देना शुरू कर दें। नाज़रीन आइए चलते स्कोर बोर्ड की तरफ। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं, कोई गलती नहीं की है। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े पहला सवाल करेंगे ओस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान वालों से। क्या खूबसूरत शेर है। बल्कि शायद मुझसे अगर कोई पूछे कि आपके पसंदीदा शेरों में से कौन सा शेर है तो ये वन ऑफ देम। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जल्दी करेंगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुलाते हैं। हाँ, सही टाइम पे याद आ गया आपको, वरना शायद आपके भी गम बढ़ जाते। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके निसार कोई कैसे रंज में हो। उनके निसार कोई, उनके निसार कोई कैसे रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। काश नबी पाक की याद दिल में बसी रहे ना, कि जिसको नबी पाक याद आ जाते हैं ना फिर उसको दुनिया के गम याद ही नहीं रहते हैं। आका की याद ही ऐसे कमाल का वजीफा है जो दुनिया के गमों को दूर कर देता है। जो दुनिया के गमों में गिरफ्तार रहते हैं ना वो अपने आप से पूछें कि मैं नबी पाक को कितना याद करता हूँ। प्यारे आका की याद ऐसा कमाल का टॉनिक है। आप किसी भी टेंशन में है ना, अगर आप नबी पाक की याद कर लें, मदीने पाक को याद कर लें, सरकार के जलवे की तड़प दिल में ले आए, आए हाय सारे गम दूर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, बंदा आका की यादों में गुम हो जाता है। अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। हमसे फकीर भी अब फैरी को उठते होंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دی. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے گئے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے گئے. کیا ہے تجھ سے ناز تیرے کسر کو کہ میں کعبہ کے عرش جانے بری کا جواب ہوں. کعبے کی جمع عرش بری کا پورا کر لیں. کعبے کی جمع عرش بری کا جواب ہوں. کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں. جواب درست دے دیا ہے. صدقے ہوں اس پہ نار سے دے گا جو مخلصی، صدقے ہوں اس پہ نار سے دے گا جو مخلصی. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. صدقے ہوں اس پہ نار سے، صدقے ہوں اس پہ نار سے دے گا جو مخلصی. پیارے صدقے ہوں. وقت ختم ہو گیا ہے. بلبل نہیں کہ آتش گل پر کباب ہوں. مشکل شعر تھا. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. جواب درست دے دیا ہے. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. کمال ہے. اعلیٰ حضرت واقعی کمال ہے. یعنی جب درخت کی بات کر رہے ہیں، کسی خوبصورت ٹری کی بات کر رہے ہیں، تو شاخیں کون ہیں، پھول کون ہے، پتیاں کون ہیں، اور یہ درخت کون سا ہے کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. یعنی وہ درخت جو جنت میں ہو جس کی سب سے اونچی شاخ ہو، میں جبریل امین سے کہوں کہ مجھے وہ سیدھی اونچی نازک شاخ دیجئے. کیوں؟ کیونکہ اس شاخ سے میں نے نبی پاک کی نعت لکھنی ہے. آئے ہائے میرے رضا کی، ایسا لگتا ہے الفاظ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے. یہ کمال کا کلام ہے جس پہ شاخ کو کس طرح استعمال کیا. اسی کلام کا ایک شعر آپ سے سنیں گے. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولاقت. کیا خوبصورت بات کی ہے. اب دل کے باغ کی بات ہو رہی ہے، دل کے درخت کی بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ وہ رحمت کا پانی دے دے کہ جو میرے دل میں جو درخت ہے نا، دخل دل میں ایک ایسی شاخ پیدا ہو جو تیرے پیار کی شاخ ہو، تیرے حبیب کی محبت کی شاخ پیدا ہو جائے. اپنے ان باغوں کا صدقہ. کون سے باغ؟ ابھی آپ نے سنا نا کہ جس میں صدیق و فاروق و عمر و عثمان کا ذکر بھی ہے، پنجتن پاک کا بھی ذکر ہے. اے اللہ ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ. جواب درست دے دیا ہے. اپنے ان باغوں کا صدقہ
नखले दिल में हो पैदा प्यारे तेरी विला की शाख जैसे नखले दिल में हो पैदा प्यारे तेरी विला की शाख। आला हजरत का इस शेर में क्या माफी ज़मीर है, मगर समझ ये आता है कि रहमत का पानी कौन सा है। यानी जब इश्क रसूल के आंसू बहते हैं ना, याद रसूल में जो पानी बहता है, ये वो पानी है जो दिल के नखल को हरा भरा कर देता है, जो दिल के बाग को हरा भरा करता है, और फिर ऐसी कौंपलें, ऐसे फूल और ऐसी शाखें बढ़ती हैं कि बंदा इश्क रसूल में उसके इजाफा हो जाता है। अल्लाह वो रहमत का पानी हम सबको नसीब फरमाए। अब जनाब हुजूर उनके ख्याले वतन मिटाना था। अच्छा, इस्लामाबाद वालों की बारी थी ना, आपकी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर उनके ख्याल वतन मिटाना था, हम आप मिट गए अच्छा फराग बाल किया। हम आप मिट गए अच्छा फराग बाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ना घर का रखा ना उस दर का हाय नाकामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न घर का रखा न उस दर का है नाकामी, हमारी बेबसी पर भी ना कुछ ख्याल किया। ये कलाम नाजरीन जो है ना, मदीने से लौटने वालों के लिए एक कमाल का कलाम है। आला हजरत ने अपनी कैफियत बयान की है और इसमें भी क्या खूबसूरत बात की। अपने आप से बात कर रहे हैं। न घर का रखा न उस दर का हाय नाकामी, हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ना गए तारा समझाने कोई सोच सकता है कि अगर बंदा मदीने से घर आ गया तो घर का तो हो गया ना, मगर बात यह है कि मदीना छूट जाए ना तो फिर घर में भी दिल लगता नहीं है, बंदा घर का भी नहीं रहता है। हाँ, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। आला हज़रत अपने आप से कह रहे क्यों मदीना छोड़ कर आए, ना मदीना रहा ना घर रहा, अब तो मैं कहीं का भी नहीं रहा, दिल तो वहीं है, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अल्लाह हमें जल्द से जल्द मदीना पाक की बात अब हाजिरी नसीब फरमाए, और मदीने से दूर रहे तो दिल याद मदीना में तरसता रहे, तड़पता रहे। जनाब अब बारी है दोनों टीमों से सवाल पूछना है, और उस सवाल में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त जवाब देना है। पहला ऑप्शन दीजिएगा बलूचिस्तान वालों के लिए, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, फकीरों में तेरे ए शहरियार हम भी हैं, तेरे फकीर में ए शहरियार हम भी हैं, तेरे फकीरों में ए शहरियार हम भी हैं। तीनों में से कौन सा दुरुस्त शेर है बताइएगा। पांच सेकंड हैं, जल्दी कीजिए। आखिरी तेरे फकीरों में ए शहरियार हम भी हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी आका हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में शहरियार हम भी हैं।
कलाम है मौलाना हसन रजा खान साहब का, बरादर आला हज़रत का। मशवरा दूंगा, अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीने की हाजिरी अता फरमाए। जब मदीने जाए ना, नबी पाक के दर पर करीब बैठकर ये शेर प्यारे आका से अर्ज कीजिएगा, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। आका निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में शहरियार हम भी हैं। हसन है जिनकी सखावत की धूम आलम में, उन्हीं के तुम भी हो, एक रेजा खार हम भी हैं। अल्लाह करीम नबी पाक की निगाह इनायत हम सबको नसीब फरमाए। बस सरकार ने तवज्जो करनी है तो काम सीधे हो जाने इंशाअल्लाह। बारी है हमारे इस्लामाबाद वालों की, बताइए शेर। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जब जलवा फरमा होगी तलअत रसूलुल्लाह की, फरमा जलवा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब्र में हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत का शेर सुनाइए। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जा पहले जवाब दे दें फिर आप तर्ज में जरूर सुनाइएगा इंशाल्लाह। जनाब, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आमिर अहमद है और मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दावत इस्लामी के टाउन निगरानू के मारे टाउन। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। मेरा नाम आमिर अहमद है और मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दावत इस्लामी के टाउन निगरान के मारे टाउन। माशाअल्लाह जी। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। क्या खूबसूरत शेर है कि नबी पाक जब मैदान महशर में आएंगे ना, तो जो गुनाहगारों को रस्सियां बंदी होंगी या जंजीरें बंदी होंगी या कैद किया हुआ होगा, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। कब? हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाअल्लाह इनको सूट पीस तोहफे में पेश करें। माशाअल्लाह, तेरे तर्ज में भी सुना दें। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। इसी कलाम का बक्ता सुनाइए। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआ है मद्दाह हुजूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम बाबर शहजाद अत्तारी है जी, सरगोदा से। माशाअल्लाह। शेर बताइए। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआ है मद्दाह, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआ साहिबे कुरआन माता है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत
रसूल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी गोया नात ख्वानी भी चल रही है, अशार भी सुन रहे हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं वाहिद अतारी उस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान, हमारे उस्ता मोहम्मद की ज़हनी आज़माइश की टीम का आज मुकाबला है, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। चलिए अभी तक मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं जामियातुल मदीना डेरा गाज़ीस्तान से हूँ। मैं उस्ता मोहम्मद टीम को सपोर्ट करता हूँ। माशाअल्लाह, चले भाई उस्ता मोहम्मद के सपोर्टर भी आ गए हैं। अभी तक तो उस्ता मोहम्मद वाले आगे जा रहे हैं, मगर आगे देखें क्या होता है। एक और कॉल दीजिएगा। करीमाबाद से अहमद शकील मेमन अर्ज कर रहा हूँ। तेजी आजमाइश हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज में इजाफा कर रहा है और अल्लाह ताला इसका सवाब आपको, पूरी टीम को और खुसूस मेरे सन्नत को अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 20 नंबर हैं उस्ता मोहम्मद के, 18 नंबर है इस्लामाबाद वालों के। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब 15 बॉक्सेस हैं नबी पाक का जश्न विलादत इस बार 1500वां पूरी दुनिया में मनाया गया। इस निस्बत से ये सेगमेंट है 15 बॉक्सेस में कोई भी चीज हो सकती है जिसके 15 नाम बताने होंगे। बारी उस्ता मोहम्मद वालों की है, तशरीफ लाइए और सेलेक्ट कीजिए कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। 1 मिनट का टाइम होगा, उसे 1 मिनट में आपने जवाब देना है। जनाब तशरीफ लाइए, कौन सा बॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे। 4 नंबर सेलेक्ट किया है, अब निकालिए बाहर और बताइए क्या लिखा है इसमें। कबूलियत दुआ की 15 मकाम। जी, कबूलियत दुआ के 15 मकामात। देखिए इससे फायदा ये होगा कि हमें भी पता चलेगा कि वो कौन से मकामात हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं। आइए आपका वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मताफ मुल्तज़म दखल बैतुल्लाह शरीफ, कुर्ब मिंबर शरीफ, ज़ेर मिज़ाब रहमत, मवाजा शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ, मज़ारात ओहद, मज़ारात बकी, मजालिस औलिया व उलमा, मज़ारत औलिया व सुलहा, कोह सफ़ा, कोह मरवा, हजर अस्वद, हतीम। जी पूरे हो गए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह इन तमाम मकामात की हमें हाजिरी नसीब फरमाए। बारी है इस्लामाबाद वालों की, तशरीफ लाइए और कौन सा बॉक्स खोलना चाहेंगे। जनाब 3 नंबर खोल रहे हैं बॉक्स और उसमें से क्या निकाला है, क्या है इसमें। अस्माए हुस्ना। वाह भाई, आसान सवाल आ गया है। अल्लाह करीम के 15 मुबारक नाम, 15 अस्माउल हुस्ना, ये इन्होंने बताना है। जवाब दीजिए, वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अर्रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गफ्फार, अल क़हार, अल वहाब, अल रज़ाक, अल फताह, अल अलीम। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 18 सेकंड में ही जवाब दे दिया, माशाअल्लाह। अब बारी फिर उस्ता मोहम्मद वालों की है, कौन तशरीफ लाएंगे। जनाब 1500वां जश्न विलादत सेगमेंट जारी है। जनाब 15 कुरानी जानदारों के नाम। वाह भाई वाह, वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू क्वेश्चन। 15 इंसानी जानदारों के नाम। अब ये क्या है, आइए सुनते हैं। कुरानी 15 कुरानी जानदार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चींटी, शहद की मक्खी, चींटी, शहद की मक्खी, बंदर, ऊंट, गधा, कुत्ता, हाथी, गधा, कुत्ता, हाथी और सांप, मक्खी, कौवा, हुदूद, बिच्छू। अभी तक 11 हुए हैं। कुरान में जिन जानदारों के नाम हैं, ये सवाल था, 15 नाम देने थे, 11 बता चुके हैं। कौवा 12 हो गया। अगर ये जवाब हो गया, कौवा बता रहे, हो गया है। चले अभी भी आपके पास 15 सेकंड है, गौर कर लें। मछली। चले 12 हो गए। मक्खी 13 मक्खी हो चुका है। मछली और मक्खी। हम जी जनाब कितने हुए, 12 हुए, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने बड़ी अच्छी कोशिश की। चले जनाब अब बारी है इस्लामाबाद वालों की।
دیکھیں کیا ان کے نصیب میں آتا ہے، وہ کون سے 15 نام بتا. ناظرین آپ بھی غور کرتے جائیں، کیا ہمیں ان چیزوں کے نام پتہ ہے؟ نہیں پتا تو معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے. جی 7 نمبر باکس کھولا ہے اور سوال کیا ہے؟ 15 اولیاء کرام کے نام. 15 اولیاء کرام کے نام. چلے جناب یہ تو آسان سوال آ گیا ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد القادر جیلانی، امام بری سرکار، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر، حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر، حضرت داتا علی حجویری، حضرت داتا علی حجویری، شاہ رکن عالم نوری حضوری، شاہ عبداللطیف بٹائی، عبداللہ شاہ غازی، امام احمد رضا خان، امام اعظم بہاؤالدین زکریا ملتانی، سخی شہباز قلندر. ماشاءاللہ ہو گئے میرا خیال ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور ٹیموں نے بڑی اچھی کوشش کی. تھوڑا سا نمبر میں اسکور بورڈ میں فرق آیا ہے، وہ ہم دیکھیں گے. پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ملک رضا سے اصغر علی اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے گھر میں ذہنی آزمائش بڑے شوق اور ذوق سے دیکھا جاتا ہے. میری والدہ محترمہ پابندی سے اس سلسلے کو دیکھا کرتی ہیں. اللہ کریم ہر سلسلے کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 23 نمبر ہیں، دکھائیے گا دوبارہ ذرا اسکور بورڈ. 23 نمبر ہیں ہمارے اوستا محمد والوں کے، 22 نمبر ہے اسلام آباد والوں کے. سلسلہ اور قریب آ گیا ہے. اب باری ہے ویری انٹرسٹنگ، بہت معلوماتی سیگمنٹ، فقہ حنفی اور اس کے دلائل. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبدالحفیظ بھائی فیس بک پر بھی ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے. تو ایک میسیج آیا اس میں کہ آپ اپنے سیگمنٹ بڑھا رہے ہیں، وہ سیگمنٹ جس میں خاندانی رشتوں کے متعلق معلومات ہوتی ہے وہ کب لائیں گے؟ اور ماشاءاللہ فیس بک پر جو قرآنی جاندار بتائے گئے 15 نام تو ہمارے فیس بک کے ناظرین نے ایسے ہی بتا دی. کیا ماشاءاللہ بات ہے. نہیں ناظرین ہمارے ماشاءاللہ بڑے معلومات جو پابندی سے ذہنی آزمائش دیکھنے والے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو بہت ساری معلومات ویسے بھی ہو جاتی ہے. باقی انشاءاللہ کچھ سیگمنٹ مزید بھی آنے اللہ کرے گا تو آپ نے جو سیگمنٹ فرمایا وہ بھی شامل کریں گے. نہیں، یہ خاندانی رشتے کا نام سن کے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کچھ میں نے دیکھی. مجھے تو تقریباً ہر سیگمنٹ کے بعد مسکراہٹ آتی ہے میرے چہرے پہ الحمدللہ. چلے جناب اب جو ہے وہ باری ہے اگلے سیگمنٹ کی، فقہ حنفی اور اس کے دلائل. جناب بتائیے نماز میں بلند آواز سے آمین کہنے کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. نماز میں بلند آواز سے آمین کہنے کے متعلق ویری انفارمیٹیو کوشچن. ہم میں سے سارے ہی لوگ کرتے ہیں مگر کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے وہ بھی جان لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک امام جب ولضالین کہیں تو امام اور مقتدی دونوں پر آمین آستہ آواز سے کہنا سنت ہے. احناف کا دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ نے آمین کہا اور اپنی آواز کو آہستہ رکھا. جی جناب نماز میں جب سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو تو آہستہ آواز میں آمین کہنا ہے. یہی امام اعظم کا موقف بھی ہے اور اس کی دلیل بھی ہم نے حدیث سے سن لی. جواب درست دے دیا ہے. اگر جمعہ والے دن عید ہو تو کیا جمعہ پڑھنا ضروری ہے؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر جمعہ کے دن عید ہو تو عید واجب اور جمعہ فرض ہی رہے گا. جمعہ فرض قطعی ہے جو کسی بھی صورت نہ پڑھنا درست نہیں ہو سکتا. چنانچہ فرمان باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب اذان نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ عز و جل کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. دوسرے سجدے کے بعد رکے بغیر سیدھا قیام کے لیے کھڑا ہونا کیسا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دوسرے سجدے کے بعد بغیر استراحت کے قیام کرنا سنت ہے.
सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई जामे तिरमिजी में सही सनद के साथ एक हदीस पाक नकल करते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से क़िराअत करते थे। जब आप रुकू फरमाते थे तो अपने जो ना सर मुबारक को ना ऊंचा करते ना नीचा बल्कि बिल्कुल सीधा करते थे। जब आप रुकू मुबारक से अपना सर मुबारक उठाते तो आप तब तक जो है ना सजदा न करते जब तक बिल्कुल सीधे खड़े ना हो जाते। जब आप सर मुबारक सजदे से उठाते तो तब तक दूसरा सजदा अदा न फरमाते जब तक आप बिल्कुल सीधे खड़े ना हो जाते। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर 2 रकात के बाद सजदे से सर उठाते तो दूसरा सजदे के दरमियान क्या करते थे? जब तक बैठ न जाती, सीधा बैठ ना जाते। ठीक है, आगे सीधा बैठ ना जाते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर 2 रकात के बाद तशहुद पढ़ते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते थे और दरिंदों की तरह अपने दोनों हाथ को जमीन पर बिछाकर इसे भी मना फरमा करते थे। और सलाम के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नमाज को खत्म करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकवा शैतान यानी दोनों पाँव को खड़ा करके एड़ियों पर बैठने से मना फरमाते थे। जनाब बड़ी तफसीली ये हदीस पाक है और यही इमाम आज़म अबू हनीफा के मौक़िफ़ की दलील है कि दूसरे सजदे के बाद रुके बगैर सीधा क़याम के लिए खड़ा होना। ये इमाम आज़म ने साबित किया इस हदीस से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज में रफ़ा यदैन करने के मुतालिक इमाम आज़म का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। ये बड़ा मारकातुल आरा मसला है। इमाम आज़म की दलील क्या है, आज गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक नमाज जनाजा में रफ़ा यदैन ना करना सुन्नत है और इस पर दलील ये है कि जामे तिरमिज़ी मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी से मरवी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पर तकबीर पढ़ी और सिर्फ पहली तकबीर में हाथ उठाए फिर दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रख लिया। यहाँ हमारे पास हज़रत अलकमा की रिवायत है, वो वाली रिवायत भी सुना दे। हज़रत अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा हमसे फरमाया क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते थे। ये कहकर आप नमाज को खड़े हुए और सिर्फ तकबीर तहरीमा में हाथ उठाए फिर हाथ न उठाए। जी जवाब तो अब आपने दुरुस्त दिया है। पहले जवाब जो है वो आपने जनाजे वाली हदीस सुना दी थी गलती से। जी तो अब ये बताइएगा कि इनको नंबर दिए जाएंगे कि नहीं। जी हज़रत अलकमा वाली जो रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से है। चले जवाब आपका जी, आपको 1 नंबर दिया जाएगा इस सवाल के जवाब में। मेहरबानी करके मशवरा करके प्रॉपर जवाब दिया करें। बहरहाल ये बड़ा कमाल का सेगमेंट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो फ़िक़ह हनफी के हम आकाम करते हैं या अहकाम पर अमल करते हैं, इमाम आज़म का मौक़िफ़ भी और उसके पीछे कुरान और हदीस की जो दलीलें हैं, बड़ी कमाल की कुरान की आयत है नस्से कतई के तौर पर या सही अहादीस के ज़रिए हम ये जान रहे हैं कि इमाम आज़म के जो माशाल्लाह हम फ़िक़ह हनफी पर अमल करते हैं तो उसके दलाइल क्या है। तो इनको बाद में भी आपने सुनना है ताकि मज़ीद हमारे पास इन चीज़ों की मजबूती आ जाए, हमारे जो समझ ले कि माशाल्लाह दलाइल भी हमें मिल जाए। जवाब बिल्कुल जनाब ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया है और हम एक कॉल लेते हैं सिलसिले में, फिर इंशाल्लाह हम स्कोर बोर्ड देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम शाहजबान अत्तारी है, मैं शाफर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह यूं तो ज़हनी आजमाइश के सारे सेगमेंट बहुत ही अच्छे और दिलचस्प हैं। खास तौर पे फ़िक़ह हनफी और उसके दलाइल सेगमेंट बहुत अच्छा है जिसमें से हमें बहुत सारा इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो नमाज के बारे में सवालात हुए थे उसके जवाबात हमने गौर से सुने और उनमें से हमने बहुत सारा इल्म दीन हासिल किया है। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल का एक और कॉल सिलसिले में दीजिएगा। हादी अब्दुल हमीद अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हम सब घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और मुझे आपका सेगमेंट 1500 मिलाकर बहुत प्यारा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब चलते हैं नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ, जो नया सेगमेंट है आज पहली बार शामिल कर रहे हैं जिसका नाम है पहले स्कोर बोर्ड दिखा दीजिए फिर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी 27 सितंबर हैं ओस्ता मोहम्मद के, 25 सितंबर हैं इस्लामाबाद के। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है तलाश कीजिए। जी जनाब, अब ये सेगमेंट थोड़ा सा यूनिक है, मैं बताता हूं। पहले हमारे बलूचिस्तान के इस्लामी भाई तशरीफ ले आए। ये पर्दा हमने उठा दिया है
तशरीफ ले आए, यहाँ पर आ जाए, कोई भी एक इस लाइन पे आ जाए। आपके पास 30 सेकंड होंगे और मैं कोई लफ्ज कहूंगा जो आपने इस मार्कर से इस लफ्ज को तलाश करके देना है। याद रहे, या तो आप सीधे में तलाश करेंगे, या इस तरह तलाश करेंगे, या क्रॉस में तलाश करेंगे, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये आप अपने पास लीजिए। आपने इसमें से मुझे फिरदौस तलाश करके देना है। फिरदौस, 30 सेकंड है, अब देखें ये तलाश कर पाते हैं कि नहीं। फिरदौस मैंने तो तलाश कर लिया है 9 सेकंड के अंदर ही, अब ये खुद तलाश करे ना, मैंने भी पहली बार ही देखा है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं जी। फिरदौस तलाश कर लिया है और लकीर बना दी है, आगे रात तक आप ले गए। फिरदौस सर नहीं है, फिरदौस है, ठीक है। जवाब इनका दुरुस्त हो गया है जनाब, तलाश कर लिया है। आ जाए भाई, इस्लामाबाद वाले आ जाएं, पहले अपनी जगह पर आ जाएं। 30 सेकंड में आपकी जहानत का इम्तिहान है। ये मार्कर लीजिए और वहां पहुंच जाइए। तलाश क्या करना है आपको बताता हूं। आपने दारुस सलाम तलाश करना है, दारुस सलाम। नाज़रीन आप भी घर बैठे तलाश कीजिए, बोर्ड आपको भी दिखाया जा रहा है। दारुस सलाम बड़ा आसान हमारी टीम ने किया है, अगली बार लगता है मुश्किल करना होगा। नजर तो आ गया है। दारुस सलाम इन्होंने भी ढूंढ लिया है और सिर्फ 15 सेकंड में ढूंढ लिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हिंदुस्तान के अब दूसरे इस्लामी भाई आएंगे, जो पहले आए थे वो नहीं आएंगे, अब दूसरे आएंगे। आपने दारुल मकामा तलाश करना है। दारुल मकामा, जनाब इन्होंने भी ढूंढ लिया है। यानी तलाश कीजिए, आसान हो गया है हमारी टीमों के लिए। फिक्र ना करें, अगली बार हम कुछ और लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चले भाई, आ जाए, इस्लामाबाद वाले आ जाएं। पहला है ना, हमने हाथ हल्का रखा है। चले, ये लीजिए मार्कर और तशरीफ ले जाइए। दारुल मुत्तकीन, दारुल मुत्तकीन तलाश कीजिए। दारुल मुत्तकीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा भी यहाँ पर का घर, आपने नाजरीन को तो काम पे लगा दिया है, क्या हाजरीन भी? जी अभी हाजरीन भी आ रहे हैं मैदान में, फिक्र ना करें। अच्छा चले भाई, दारुल मुत्तकीन भी ढूंढ लिया है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले माशाल्लाह, इन्होंने तो सब तलाश किया। आप में से कौन आएगा? अच्छी नियत, आप कोई नियत होनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं। किसी बिजनेसमैन को आना है तो वो आ जाए। चले भाई, कोई है जो आकर तलाश करे, वर्ड तलाश करना है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में कौन आना चाहता है? चले भाई, आप आपकी बारी। आप किसी से कोई अच्छी सी प्यारी सी मदनी फीस ले ले, कोई काफले की नियत हो जाए, कोई मुताले की नियत हो जाए, कोई जामियतुल मदीना में दाखिले की नियत हो जाए। जो हमारी ज़हनी आजमाइश की टीमों में आए, आती भाई, जो ज़हनी आजमाइश की टीमों में आए उन्हें नहीं लेंगे आप, वो तो वैसे ही स्टेज पर आएंगे ना। चले, किसी नए मेहमान को लाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। ये तो माशाल्लाह। चले जी, 3 दिन के काफले के लिए हमारे इस्लाम भाई हैं। अब उन्होंने जी बढ़ा दें अगर। आएंगे तशरीफ लाएंगे, आ जाए। चले, क्या करते हैं, नाम क्या है, पहले नाम क्या है, मसरूफियात क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम मोहम्मद अफजल अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैजान अहमद रजा, सेक्टर 9, दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म। दौर हदीस वाले तो वैसे ही पकड़ लेंगे। आ जाए, चले। कोशिश किया करें कि हमारे जो न्यू कमर्स हो ना आए, आ जाए जी। चलिए, ये मार्कर लीजिए और हमें अल हुस्ना ढूंढ के दीजिए। अल हुस्ना, 30 सेकंड है आपके पास। अल हुस्ना, अच्छा मजे की बात है, कोई और तलाश कर रहा हो हमें फौरन मिल जाता है, हमारी बारी में नहीं मिलता है जनाब। अल हुस्ना तलाश कर लिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। चले भाई ने तोहफा भी पेश करे और अच्छी सी काफले की नियत भी करवाएं। कल इंशाल्लाह जब अगला प्रोग्राम होगा तो हमारी टीम ने उम्मीद है कि इसे पिक कर लिया होगा कि इसको थोड़ा मजीद हार्ड करना है। ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब नाज़रीन वक्त हुआ है अपने नेक अमाल का जायजा लेंगे और बड़ी प्यारी सी नातख्वानी करेंगे। दोनों टीमें तशरीफ ले आएं और इंशाल्लाह इसमें शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह भी नेक अमाल का जायज़ा होगा। जिनके पास नेक अमाल के रसाइल हैं वो अपने रसाइल निकाल लीजिए और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ नेक अमाल का जायज़ा करते हैं। अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी,
कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात पढ़े या सुने, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आंखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमात से 2 घंटे घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, जोहर की सुन्नत कबलिया फर्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या ईशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीजें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, जाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिजी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ा कार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहखा लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ नेक अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आइए वक्त हुआ है नाज़रीन, अब इंशाअल्लाह नात शरीफ पढ़ी जाएगी। अदब व शौक के साथ तमाम आशिकान रसूल नात खानी में शामिल हो जाएं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन या कर
کرم ہو تو مجلا ہو جائے، ہیرا آئینہ توجہ سے مصفا ہو جائے، سینہ انوار گئے جلوائے مولا ہو جائے، دل میں تم آؤ تو دل عرش معلا ہو جائے، نور ایمان سے میرا سینہ منور کر دو، دل میں عشق رخ پر نور کا جذبہ بھر دو، یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، منتشر میں خیالات کی وادیاں، منتشر میں خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والیے دو جوان، لٹ گیا ہے سکون والیے دو جوان، لٹ گیا ہے سکون والیے دو جوان، دور ہو جائے غم یا شہ محترم، دور ہو جائے غم یا شہ محترم، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں، اپنی آغاش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا
وسدا رہے تیرا سوگونا حرم تیرا سوگونا حرم اور تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے گھر پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالا وسدا رہے تیرا سوگونا حرم تیرا سوگونا حرم شالا وسدا رہے تیرا سوگونا حرم تیرا سوگونا حرم یا شفیع امم للہ ہر دو کرم یا شفیع امم للہ ہر دو کرم شالا وسدا رہے تیرا سوگونا حرم میرا سوگونا حرم اور کس کو جا کر تاجدار حرم کس کو جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا کس کو جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم رہے وہ فرما دے اب تیری امت ہے ہم رہے فرما دے اب تیری امت ہے ہم رہے فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدا رہے تیرا سوگونا حرم تیرا سوگونا حرم شالا وسدا رہے تیرا سوگونا حرم تیرا سوگونا حرم حاضری وہ
से ज़िक्र सरकार में आते जाते रहे तेरी चौखट पे हम आते जाते रहे तेरी चौखट पे हम मदीने मुझको बुला ले बहुत उदास हूँ मैं तुम्हें जहाँ से बचा ले बहुत उदास हूँ करम हुजूर हो ऐसा करम हुजूर हो ऐसा कि सारा घर आए मेरा सवाल न टाले बहुत उदास हूँ मैं अपनी बारी भी कभी आएगी इंशाअल्लाह हाज़री अपनी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह आते जाते रहे तेरी चौखट पे हम आते जाते रहे तेरी चौखट पे हम शाला वसदार तेरा सुगोना हरम तेरा सुगोना हरम मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा हुजूर कितने ही आते मैं भी आऊँगा एक रोज होगा जाना सरकार की गली में होगा ही ठिकाना सरकार की गली में वो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा एक दिन मुझे जमाना सरकार की गली में दिल में नबी की यादें लब पर नबी की नातें जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में आते जाते रहे तेरी चौखट पे हम शाला वसदार रहे तेरा आते जाते रहें तेरी चौखट पे हम रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम शाला वसदा रवे तेरा सोना हरम। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान ज़ातारी है। मेरा अब्दुल हबीब भाई से सवाल ये है कि जो ज़हनी आज़माइश के आउटडोर्स प्रोग्राम्स होते हैं तो इस दफ़ा के सेमीफाइनल फाइनल आउटडोर किन किन शहरों में होंगे, उसकी अगर लिस्ट हमें पता चल जाए तो। जी, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस काम कर रही है और मुख्तलिफ शहरों से ज़िम्मेदारान ने हमसे रब्ता भी कर लिया है। आप भी अगर अपने शहरों में करवाना चाहते हैं तो अपने ज़िम्मेदारान के ज़रिए ज़हनी आज़माइश के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे रब्ता कीजिए। अगले कुछ दिनों में इंशाअल्लाह हम फाइनलाइज़ कर लेंगे कि पाकिस्तान के किन किन शहरों में ज़हनी आज़माइश के आउटडोर प्रोग्राम्स होंगे और ये आखिर में होंगे, दिसंबर में जाकर होंगे कि जब हमारे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपको डेट के साथ अल्लाह ने चाहा तो हम अनाउंस कर देंगे। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम उम्मे हानियत तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आज मैं आपसे छोटी सी ज़हनी आज़माइश करूँगी। अच्छा। आपको ऐसा शेर सुना जिसमें लफ्ज़ मदीना 2 बार आता हो। अच्छा, ये तो आसान सवाल आपने कर लिया। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। आपने 2 बार कहा था, मेरा ख्याल 4-5 बार आ गया। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वक्त हुआ है हम हदीस पाक की वीडियो चलाते हैं, एक हदीस पाक बताते हैं जो बच्चे रिकॉर्ड करके भेजते हैं, तो प्यारी प्यारी बच्चों की आवाज़ में आइए हदीस पाक सुनते हैं।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं उम्मी नबी हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं उम्मी नबी हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं उम्मी नबी हूँ, और मेरे बाद कोई नबी नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ, और मेरे बाद कोई नबी नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। चले माशाल्लाह, आज की हदीस स्क्रीन पर देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, और इस हदीस की वीडियोस भी आपने हमें भेजनी है। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुमको जो मुझसे निस्बत है, जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। इंशाअल्लाह ये हदीस पाक खत्म नबूवत के अकीदे को मजीद वाज़े भी करती है, बड़ी वाज़े हदीस है, इसको याद भी कर लीजिए, इसकी वीडियोस भी भेजिए, इंशाअल्लाह कल के सिलसिले में वक्त मुनासिब पर चलाएंगे। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं एक बार फिर हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 31 नंबर हैं ओस्ता मोहब्बत के, 29 नंबर हैं इस्लामाबाद के। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है कुरानी मालूमात। जनाब कुरानी मालूमात सेगमेंट में दोनों टीमों से 2-2 सवाल होंगे। पहला सवाल करेंगे ओस्ता मोहम्मद वालों से, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करने के हवाले से अल्लाह का प्यारा कलाम कुरान हमें क्या बताता है? कुरान पाक की आयत सुनाएंगे, तर्जमा सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तालमून। दोबारा आयत सुनाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तालमून। व अंतुम तस्माऊन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और उससे सुना कर ना फिरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन। तर्जुमा कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और सुनाकर उससे ना फिरो। जनाब क्या पूरे नंबर इन्हें दिए जाएंगे? जनाब 1 नंबर आपको दिया जाएगा। आयत पूरी दुरुस्त सुनाइएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम बुलाएं तो तुम पर लाजिम है कि उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। उससे मुतालिक नबी पाक ने क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। तर्जुमा कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर दौड़ते हुए आओ जब रसूल तुम्हें उस बात की तरफ बुलाएं जो तुम्हें जिंदगी बख्शेगी। तर्जुमा कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जब रसूल तुम्हें उस चीज के लिए बुलाएं जो तुम्हें जिंदगी बख्शेगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी जी, आयत जरा दोबारा सुनाइएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ठीक है, चले जनाब, अब बारी है, एक तस्वीरें दिखाई जाएंगी, इसके जरिए आपने कुरान का वाकया भी ढूंढना है कि कौन सा वाकया है, कुरान पाक के किस पारे और किस सूरत में है, बताइए। जनाब कुछ रास्ता नजर आ रहा है, कुछ असा नजर आ रहा है। असा मारने से पत्थर असा मारने से पानी फट गए। अच्छा, असाब की मार से दरिया फट गया। जनाब पारा कौन सा है, सूरत कौन सी है? जल्दी करें, 4 सेकंड रह गए। सूरह बकरा पारा नंबर 19 है, सूरह शुअरा है, गलती हो गई है, 1 नंबर आपको मिलेगा। असा की मार से दरिया फट गया कुरान का अजीम वाकया है और बड़ा जबरदस्त मौजज़ा अल्लाह के नबी का। बारी है इस्लामाबाद वालों की, बताइए जनाब।
तस्वीर के जरिए कुरान का वाकया, 4 भी है और कोई बच्चा भी नजर आ रहा है। कुरान का ये कौन सा वाक्य, फिर तस्वीर दिखाइए। जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़ात, पारा 3 सूरह आल इमरान। फिर बच्चा कहाँ गया? 4 महीने के बच्चे की गवाही, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ई की तरफ इशारा था। पारा 12 सूरह यूसुफ। इस्लामाबाद वालों से गलती हो गई है। सैयद साहब के हाथ में मारिफतुल कुरान है और आज ये तोहफा किसको देना है? थोड़ा सब्र कीजिए, इंशाल्लाह फिर आपको बताते हैं कि तोहफा किसको देना है। बहरहाल ये कुरानी वाक़यात के लिए अजायबुल कुरान गराइबुल कुरान किताब ये हमारे मकतबे पर मौजूद है। आतिफ भाई बताइए, किताब अगर कोई हासिल करना चाहे क्या कीमत है इसकी? ये तकरीबन 450 रुपये में मकतबतुल मदीना से आप तलब कर सकते हैं और घर बैठे डिलीवर अगर कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके घर पर फ्री ये भेज दी जाएगी। और दावत इस्लामी की खुसूसियत ये है डिलीवरी चार्जेस फ्री होंगे, किताब की कीमत दी जाएगी। जी जी हाँ। तो दावत इस्लामी की खुसूसियत ये है कि कोई भी किताब पब्लिश करती है तो वो अपनी वेबसाइट पर भी उसको अपलोड कर देते हैं और वहां से फ्री डाउनलोड की जा सकती है। जी जनाब, अमेजिंग बुक है, शायद मैंने कई बार इसको पढ़ा है और कई शानदार वाकयात इसमें कुरान के मौजूद हैं। 100 से जायद वाकयात हैं, ये किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है। नाजरीन, मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। बलूचिस्तान की टीम, जिसके बारे में नॉर्मली तासुर होता है कि वो पीछे रह जाएंगे, मगर फ्रॉम द स्टार्ट बलूचिस्तान वाले आगे चल रहे हैं। स्कोर बोर्ड एक बार देख लेते हैं, मगर क्या आखिरी सेगमेंट में भी बलूचिस्तान वाले आगे रहेंगे या इस्लामाबाद वाले जनाब उस लीड को कवर कर लेंगे? आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। 33 नंबर है उस्ता मोहम्मद, 31 नंबर है इस्लामाबाद वालों के। आखिरी सेगमेंट करेंगे जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। वैसे तो उस्ता मोहम्मद से इस्लामाबाद बहुत दूर है, मगर ना आज हम टिकट लेंगे ना खर्चा लेंगे। उस्ता मोहम्मद वाले आ जाएं इस्लामाबाद वालों के साथ, इस्लामाबाद वाले पहुंच जाएं उस्ता मोहम्मद की टीम में, खड़े हो जाएं और तैयार हो जाएं। 5 सवाल होंगे, या सही कहना है या गलत कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। हसनैन अली भाई उस्ता मोहम्मद से आप तैयार हैं? जनाब जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार मुबारक मक्का मुकर्रमा में है। सही कहेंगे गलत कहेंगे? ठीक है। जफरुद्दीन, ठीक है, जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हजरत के खलीफा हैं। सही। सिरातुल जनान उसूल तफसीर के मौजू पर लिखी गई किताब का नाम है। वसाइल बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब है। सही। बगदाद में मशहूर सूफी बुजुर्ग अब्दुल लतीफ बिठाई का मजार है। गलत। जनाब एक गलती आपसे हुई है, मौलाना जियाउद्दीन मदनी का मजार नाम भी मदनी है और मजार भी मदीने शरीफ में है, गलती कर गए हैं जनाब। 4 नंबर फिर भी हासिल किए। बिलाल हसन शाह इस्लामाबाद। सफा मरवा मक्का पाक में है। सही। शब मेराज 26 रजबुल मुरज्जब को होती है। गलत। हजरत आयशा की कुन्नियत उम्मे सलिमा है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही में सूरह वद्दुहा नाजिल हुई। गलत। नमाज ज़ोहर में कुल 12 रकअतें हैं। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। इस्लामाबाद करीब आते हुए फिर औस्ता मोहम्मद के अमजद अली भाई की बारी है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये चांद देखते वक्त की दुआ है। गलत। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के निकाह में नबी पाक अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां आई थी। सही। गौसुस सकलैन इमाम बुखारी को कहा जाता है। गलत। मुस्लिम बिन हुज्जाज इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। गलत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लाठी के जरिए भी मौजज़ात दिखाया करते थे। सही। अल्लाह आखिरी आपने बात कर दी है, वो मौजज़ात नहीं दिखाते थे, वो हजरत मूसा थे। बहरहाल एक गलती की है, 4 नंबर हासिल किए हैं। अब बारी हुज़ैफा की है, इस्लामाबाद से ताल्लुक है। हज माह मुहर्रमुल हराम में अदा किया जाता है। गलत। हजरत आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक की वालिदा हैं। सही। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का लक़ब दफीनुल मलाइका है। गलत। सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला का लक़ब है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत हुसैन का नाम शब्बर भी रखा था। सही। अल्लाह 2 गलतियां कर दी है जनाब। दफीन हजरत सैयदुश शुहदा का लक़ब हजरत हमजा है, आपने उसको गलत कह दिया। और प्यारे आका ने हजरत हुसैन का नाम शब्बर नहीं रखा था। अब जनाब मुकाबला फिर 2 नंबर से उस्ता मोहम्मद वाले आगे हैं। अब दोनों आखिरी इस्लामी भाइयों पर अपनी दोनों टीमों की जिम्मेदारी है। अब बारी है उस्ता मोहम्मद के अब्दुल कादिर भाई, सुन्नी दारुल उलूम से ताल्लुक। दारुल उलूम का नाम क्या है आपके? फैजुल उलूम। फैजुल उलूम। उस्ताद हैं आप, कौन से दर्जे पढ़ाते हैं वहां पर? इब्तिदाई क्लास। इब्तिदाई क्लासेस पढ़ाती। दरस निज़ामी कहाँ से किया आपने? जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर।
माशाअल्लाह। चले जनाब, आपके कांधों पर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है। जमरात यानी शैतानों पर कंकरियां मारने को सही कहते हैं। सूरह कौसर में 3 आयत हैं, जल्दी करें। नूर वाला आया है, कलाम मौलाना हसन अदा खान साहब का है। जन्नतुल बकी मक्के में है। आपस में मुलाकात के वक्त गले मिलने को मुआनका कहते हैं। सही। देखना यह है क्या कोई गलती की है। 5 के 5 सही जवाब दे दिए। बलोचिस्तान वालों ने कमाल कर दिया है नादरीन। अब इस्लामाबाद के जवाद हसन की बारी है। अबू हनीफा इमाम आजम की कुन्नियत नहीं है, जल्दी करें, सही कहें या गलत कहें। सही। पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सही। काबे की छत पर जो परनाला है उसे मुल्तजम कहते हैं। सही। इमाम बुखारी का बाजार मक्का मुकर्रमा में है। गलत। नमाज जुमा बगैर जमात के अदा नहीं की जा सकती। सही। हाँ, गलती आपसे हुई है जनाब। 2 गलतियां कर गए हैं, एक बड़े मार्जिन से। आज बलूचिस्तान वाले मुकाबला जीत गए हैं। इस्लामाबाद वालों को फिर तैयारी करके आना है, एक मौका मिलेगा। बलूचिस्तान वाले अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। दोनों टीमों को तहफ़ भी देंगे। और आज मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी में एक बड़ा खूबसूरत तोहफा मारिफतुल कुरान का ये पेश किया जाएगा। ये 3 किताबों का जो सेट है, पूरा कुरान पाक लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा। इंशाल्लाह आप में से किसी को आ रहा है, याद रहे ये 7,500 रुपए का सेट आपने खरीदना है और कोशिश करें कि इसको पढ़ें, अपने घर में रखें। सैयद साहब लाइए कुरानदाजी। पहले आपको बताते हैं नाज़रीन, स्कोर बोर्ड किस तरह चलते चलते पलट गया मुकाबला, और इंशाल्लाह कुछ देर में दिखाते हैं क्या हमारी वो डिजिटल कुरानदाजी रेडी है। जी जनाब, आज की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है माशाल्लाह हमारे बलूचिस्तान के अब्दुल कादिर भाई को पेश करेंगे। आपका आना मुबारक, अल्लाह आपके जामिया को भी तरक्की दे, तमाम सुन्नी आशिकान रसूल के जामियात को अल्लाह तरक्की दे। जनाब, आज आपसे एक सवाल किया गया था, उसका जवाब आतिफ भाई कुरानदाजी रेडी है जी? चलिए कुछ देर में करते हैं। आपको नाज़रीन सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आपने कल प्रोग्राम के शुरू होने से पहले देना है। अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में पैदा फरमाया? अल्लाह करीम ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में पैदा फरमाया, वो इंशाल्लाह आपको करेंगे, बताएंगे। आपने बताना जवाब और इंशाल्लाह उसका आपको हम कुरानदाजी करेंगे। जी आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 42 नंबर इस्लामाबाद, 46 नंबर उस्ता मोहम्मद, 4 नंबर के फर्क से उस्ता मोहम्मद वाले जीत गए। कल मुकाबला किसका किसके दर साथ है, आइए बताते हैं आप। जनाब मदीन स्वात से लोग आशिकान रसूल आ रहे हैं और साथ उनका मुकाबला लाहौर से है। उम्मीद है कल भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। अब पर्ची मैंने निकाल ली है, मारिफतुल कुरान, सुभान अल्लाह, 6679 माशाअल्लाह, सबसे आगे बैठे थे और इन्हीं को तोहफा मिल गया, क्या बात है माशाअल्लाह। अब मदनी मुन्नों की कुरानदाजी है 6795। मदनी मुन्नों में भी कोई हो तो आ जाएं और ये मारिफतुल कुरान दीजिए सैयद साहब, इंशाअल्लाह ये तोहफा हम इनको पेश करेंगे। और 6795 जो है अगर मौजूद हो तो कर लें। सैयद साहब आतिफ भाई कुरानदाजी कर लें, जो सवाल हुआ था उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। सवाल ये था कि इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम बताइए। तो दुरुस्त जवाब है मोहम्मद बिन अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। उम्मे हानी दीनगाह मोहम्मद सुलेमान अरशद झंग मोहम्मद इमरान अत्तारी तहसील खानपुर बिनते अताउल्लाह कराची अहमद रज़ा बिनते मोहम्मद ज़हीर अब्बास हाफिज़ाबाद मोहम्मद मुज़म्मिल अत्तारी मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना कराची बिनते यूनुस अटक बिनते अनवर मियाँ चन्नू मोहम्मद बिलाल अत्तारी बिन अब्दुल रऊफ़ लाहौर अली असगर कोयटा उम्मे रिहान अली शाह अकीक सुजावल। अब इनके दरमियान इंशाल्लाह कुरानदाजी करते हैं। जो नाम निकला है बिनते अताउल्लाह कराची, बिनते अताउल्लाह कराची इनका आज। चलिए माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, जो डिजिटल कुरानदाजी होती है एप्लीकेशन पर जो सवाल किया गया था उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। अब तो आका दर पे अपने हमको बुलवा लीजिए, जुल्म जाम पर जो की। वो कौन सी खातून है जिन्होंने सबसे पहले अपने कानों को छिदवाया था? सही जवाब हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। आइए जनाब, आप देखते हैं कि किन खुशनसीबों की आईडी निकल रही है। ऊपर आप फोन नंबर देख लीजिए और ये 5 आईडीज का स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आपकी आईडी इसमें है तो हमसे राब्ता कीजिए, आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। तमाम आशिकान रसूल अदब व शौक के साथ खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए। काबे के बदरों तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के
بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ کہہ دو کرے باغ باغ طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک